Hello students, TeacherTube is back again with a new video. We provide online science videos with a good quality and contents as per the syllabus for the classes of NCERT science from 6 to 10. I hope you would like the contents and the way they are being presented in the video. So, if you like the video, please like it, or if you have any suggestion, please comment in the comment section. We will try our best to work on your suggestion definitely. Now, without wasting your time, let's begin. So today we will discuss about the metals and non-metals. This third chapter of class 10, very important one, and that we will discuss in this part of the video. So first of all, let's see the physical properties of metals. Metals are solid. First thing, most of the metals are solids, except there are some exceptions also. Means कुछ अपवाद भी जैसे mercury. Mercury is a liquid at room temperature. So, but most of the metals are solid. Metals are hard. Second thing, most of the metals are hard. Here also some exceptions are there. Lithium, potassium and sodium, these are soft metals and these are the exceptions. Okay, then metals have metallic luster. एक शाइनिंग है मेटल्स में, एक मेटेलिक शाइनिंग होती है. सो ये लस्टर है, ये इसका आइडेंटिकल एक प्रॉपर्टी है. मेटल्स आर मेलिएबल. जितने भी मेटल्स हैं वो मेलिएबल हैं. मेलिएबिलिटी क्या होती है? The property of metals, that the metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. So metals are malleable. Metals are ductile also. Means if a metal or if a substance can be drawn into wires, then the property will be called as ductile. So all the metals are having this property, that is called ductile. मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट. मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है. यहाँ एक्सेप्शन है गैलियम एंड सीजियम का, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है. दे मेल्ट इन द पाम ऑफ आवर हैंड. अगर हम हथेली पर उनको रख लें तो वो मेल्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट इज मेटल हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट्स. मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट भी होता है बहुत हाई होता है. ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. All the metals are good conductors of heat. Best conductors are silver and copper. Poor conductors are lead and mercury. ठीक है. Then metals are good conductor of electricity. Yes. Best conductor of electricity is silver and copper. अब चूँकि silver is very costly, so as a replacement of silver we are using copper in our daily life electricity works. Then the last one is metals are sonorous. Means they have a special type of sound production ability, and this property is called sonorous. Sonority. We can say the metals can produce a sound when they are being beaten. ठीक है. सो मेटल में एक मेटेलिक साउंड होती है जब उनको बीटन किया जाता है, यानी चोट उनको लगाई जाती है, हैमर करते हैं तो उनमें एक साउंड आती है. ये प्रॉपर्टी. सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. यहाँ देखिए, जो आपको ये एक लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो आपकी मरकरी है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की तरह बिहेव करती है. और आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करके और जलने लग जाते हैं. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं. इसका रीज़न क्या है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, एंड दैट इज़ वाई दे रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड दे मेड ऑक्साइड्स.
नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. नॉन मेटल्स में बी सॉलिड्स. यहाँ देखो मेटल्स की प्रॉपर्टी ये थी कि वो सॉलिड्स ही होते हैं, लेकिन वहाँ एक्सेप्शन ये था कि जैसे मरकरी है वो लिक्विड रहता है. बट नॉन मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स. दे मे बी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड गैसेस. ओके, सॉलिड के एग्जाम्पल के लिए कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस etc. And for the liquid we are having bromine, and for gases we have oxygen, hydrogen, nitrogen and all the other gases. Okay, next is non metals are soft. जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होते हैं, एक्सेप्ट यहाँ एक्सेप्शन है डायमंड का. डायमंड बहुत हार्ड है इन, और वी कैन से द हार्डेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड. सो नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर. नॉन मेटल्स में जो है लस्टर्स नहीं होती, एक साइनिंग जो होती है, जो मेटल्स की साइनिंग वो यहाँ पर नहीं मिलती है, एक्सेप्ट आयोडीन. आयोडीन में ये लस्टर होती है, ध्यान नहीं रखना, एग्जाम में कई बार पूछता भी है. नॉन मेटल्स आर नॉन मेलिएबल. नॉन मेटल्स जो हैं वो वी कैन से थिन शीट्स में कैन नॉट बी कन्वर्टेड. एंड नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल. तो उनको वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. नॉन मेटल्स जो हैं उनको वायर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट. वो मेटल जो सॉलिड हैं और लिक्विड हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स हैव लो बॉइलिंग पॉइंट्स. इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है. नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. हीट के बैड कंडक्टर होते हैं. एंड यूजुअली दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. यहाँ पर एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट का. सो इसे हम लेसन नंबर 4 में भी पढ़ेंगे, द आइसोटोप्स ऑफ कार्बन. वहाँ हम देखेंगे डायमंड और ग्रेफाइट जो हैं ये थोड़े एक्सेप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. सो डायमंड यहाँ सॉफ्ट का एक्सेप्शन है और ग्रेफाइट जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ नॉन मेटल्स का एक एक्सेप्शन है. नॉन मेटल्स जो होते हैं दोज आर नॉट सोनोरस. मीन्स जब हम उनको हैमर करते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो वो एक साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी नॉन मेटल्स की. नाउ लेट्स सी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. अब बात करते हैं हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में. फर्स्ट ऑफ थिंग दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन. यानी कि जब मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनकी क्या रिएक्शन होती हैं. देखिए, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं. अब मेटल जो भी है उसी का ऑक्साइड बनेगा. व्हेन कॉपर इज हीटेड इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, कॉपर के साथ में कॉपर ऑक्साइड बन गया. एंड द इक्वेशन इज गिवन हियर 2Cu plus O2 is equal to 2CuO. When aluminium is heated it combines with oxygen to form aluminium oxide. एल्यूमिनियम के साथ ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं. Some metal oxides are basic oxides because they react with water to form bases. कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं और वाटर के साथ मिलकर वो बेस बनाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड. अब ये जो सोडियम ऑक्साइड है ये एक बेसिक ऑक्साइड्स है क्योंकि ये हाई वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, बेस बना रहे हैं. इन द सेम वे पोटेशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम ऑक्साइड बनाता है. एंड दिस पोटेशियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक बेस है. सम मेटल ऑक्साइड शो एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज बोथ टुगेदर. कुछ मेटेलिक ऑक्साइड ऐसे भी हैं जो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी दोनों दिखाते शो करते हैं. दीज टाइप ऑफ मेटल ऑक्साइड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इन द लास्ट ईयर they were asked in the first pre-board and second pre-board also. Aluminum oxide, zinc oxide, these are the example of amphoteric oxides. Keep in mind. So aluminum oxide plus 6HCl ये रिएक्शन कर रहा है एसिड के साथ. सो बना रहे हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर.
ये बेसिक प्रॉपर्टी है। एसिड के साथ क्या देखिए AlO3 प्लस NaOH, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा और बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा, और ये सॉल्ट यहाँ पे बन गया सोडियम एल्यूमिनेट बन गया और वाटर बन गया। ठीक है ना, ये रिएक्शन है बेसिक, और ये एसिड है तो बेस प्लस एसिड ये बन गया सॉल्ट। इन द सेम वे एसिड प्लस बेस मीन्स वही, देखो यहाँ पर जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सेम जो मेटल ऑक्साइड है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बट व्हेन वी आर मेकिंग इट टू रिएक्ट विद ए बेस, तो यहाँ पर ये एक एसिड की तरह बिहेव करता है। तो ऐसी डबल प्रॉपर्टी जब रख रहे हैं तो ऐसे ऑक्साइड्स को हम कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। The reactivity of different metals with oxygen is different. Yes, metals like potassium and sodium react vigorously with the oxygen and catch fire if they are kept in open. इसीलिए उनको ओपन में नहीं रखते और उनको केरोसिन में मर्ज करके रखते हैं, सबमर्ज करके रखते हैं। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में बहुत ही विगोरसली रिएक्ट करते हैं और जल्दी से रिएक्ट करते हैं। If magnesium is heated, it burns with a bright flame. I have shown you this in the chemistry lab. How a magnesium burn with a bright flame. If iron is heated, it glows brightly. जब आयरन को गर्म किया जाता है तो ये ग्लो करता है, ब्राइट तरीके से चमकता हुआ ये ग्लो करता है। If copper is heated, it does not burn but forms a black coating. ये जलता नहीं है लेकिन एक काले कलर की कोटिंग इसके चारों तरफ कोटिंग बना लेता है, एंड दैट कोटिंग इज ऑफ कॉपर ऑक्साइड, मीन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज वाई कॉपर ऑक्साइड ये बना रहे हैं। ठीक है, आयरन के साथ में क्या कर रही है, आयरन ऑक्साइड बना रहे हैं। मैग्नीशियम के साथ में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। सिल्वर एंड गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, इसीलिए तो ये इतने कॉस्टली हैं और सालों साल तक इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता, इनके ऊपर किसी प्रकार की रस्टिंग शो नहीं होती है। इवन एट हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड एसेट्रा फॉर्म्स एन ऑक्साइड लेयर ओवर इट विच प्रिवेंट्स फर्दर ऑक्सीडेशन। इसीलिए तो जब मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जब हम गर्म करते हैं तो डायरेक्टली अगर गर्म कर रहे हैं तो जलता नहीं है। क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर क्रिएट कर लेते हैं, और ये रिएक्ट जो है उसके फर्दर ऑक्सीडेशन को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। दे आर कॉल्ड सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स। ये मेटल्स जो हैं सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेटल्स कहलाते हैं। कौन कौन से होंगे ये? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड। कीप इन माइंड, ओके। देन रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ में किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, है ना। एंड हाइड्रोजन इवोल्व होता है यहाँ पे, ये एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ध्यान रखना कि जब भी मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवोल्व होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस इवोल्व हो गई। पोटेशियम के साथ कैल्शियम, एल्यूमिनियम और आयरन के साथ भी सेम वे में रिएक्शन होती हैं। द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल्स विद वाटर इज़ डिफरेंट। यस, ऑफ कोर्स अलग अलग मेटल की जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। ध्यान दें, कोल्ड वाटर के साथ में सोडियम और पोटेशियम ये कोल्ड वाटर के साथ में वायलेंटली रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड कैचेस फायर, और इसीलिए वो आग पकड़ लेते हैं। जबकि कैल्शियम रिएक्ट्स लेस वायलेंटली, कैल्शियम जो होता है वो थोड़ा कम वायलेंटली इसके साथ रिएक्ट करता है विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
एंड वाटर एंड डज नॉट कैच फायर, और इसीलिए वो आग नहीं पकड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर बन रहा है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स ओनली विद हॉट वाटर, यहाँ ध्यान दें, ये रिएक्ट कर रहे हैं कोल्ड वाटर के साथ में, पोटेशियम और पोटेशियम और सोडियम, जबकि मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बना रहे हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं एंड हाइड्रोजन बना रहे हैं। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक रिएक्ट ओनली विद स्टीम, ये ध्यान दें, एल्यूमिनियम है, आयरन है और जिंक, ये वाटर स्टीम के साथ में ही रिएक्ट करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन इवोल्व होती है। मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। लेड है, कॉपर है, सिल्वर और गोल्ड जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट सी रिएक्शन विद एसिड्स। एसिड्स के साथ में मेटल्स का क्या रिएक्शन है? सो मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन। जब मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस वहाँ पे इवोल्व होनी है। सो यहाँ पर मैग्नीशियम जैसे रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, या एल्यूमिनियम है, जिंक है और आयरन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो ये बना रहे हैं मेटेलिक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड आयरन क्लोराइड। सो हियर हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवॉल्व्ड, हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। द रिएक्टिविटी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, अलग अलग मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग है, दैट वी नो ऑल। फॉर द अबव मेटल्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज मैग्नीशियम्स हाईएस्ट रिएक्टिव, aluminum is less, then zinc is more less and iron is least reactive। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मैग्नीशियम हो गया, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक हो गया, उससे कम हो गया आयरन। सो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। ये डाइल्यूट HCl के साथ में किसी प्रकार की कोई रिएक्शन शो नहीं करते हैं। कौन कौन? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। यहाँ ध्यान दें बच्चों, व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड देन द हाइड्रोजन गैस इज बीइंग इवोल्व्ड, बट व्हेन they are reacting with nitric acid then hydrogen gas is not evolving because it is a strong oxidizing agent and it oxidizes the hydrogen produced to water and is itself reduced to oxides of nitrogen। हो क्या रहा है देखिए, यहाँ पर कॉपर जो है नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कॉपर नाइट्रेट बना रहे हैं, प्लस वाटर बनता है और प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, डाइऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। मेटल्स का मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ में क्या रिएक्शन है? ए मोर रिएक्टिव मेटल, यहाँ क्या होगा कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है ना वो डिस्प्लेस कर देगा लेस रिएक्टिव मेटल को, है ना, वेरी सिंपल। और ये हमने पहले लेसन में पढ़ भी चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि जो मोर रिएक्टिव जो मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, हियर यू सी। तो यहाँ जो मैग्नीशियम जो है वो सल्फेट के साथ में ज्वाइन करता है और कॉपर यहाँ पे इवोल्व हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से अलग कर देता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है। एंड आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, आयरन भी जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम, जैसे ये हमने ले लिया ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? ब्लू। व्हेन वी आर एडिंग सम मैग्नीशियम पाउडर then the reaction will be happen and what we will get pieces of copper and colorless sulfate solution we will get magnesium sulfate solution। In the same way कॉपर सल्फेट का ब्लू सॉल्यूशन हम ले रहे हैं
and then we are putting a nail inside it. Then after 15 to 20 minutes, what we will get, green iron sulfate solution we are getting in the test tube. Why? Because कॉपर मेटल, जो यहाँ पर जो कॉपर था वो मेटल के रूप में पिन के ऊपर बन जाता, जम जाता है. देन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स. यहाँ देखिए, द अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज. ये आपको वैसे लर्न करना ज़रूरी है, क्योंकि इसी के बेस पे बहुत सारी रिएक्शंस का आंसर आप दे पाएंगे. तो यहाँ ध्यान रखें, पोटेशियम जो हाईली रिएक्टिव है, देन सोडियम, देन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम का अभी हमने पढ़ाई था, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, ये अभी पढ़ाई था. उसके बाद आते हैं हमारे लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, सिल्वर और गोल्ड इन द लास्ट. सो रिएक्टिविटी सीरीज जो है इस तरह से काम करती है. इसको आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ हम देखें तो सबसे मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है दैट इज पोटेशियम, एंड द लीस्ट रिएक्टिव मेटल है वो है गोल्ड. क्लियर? आज के इस वीडियो में आप बस इतना ही डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में द रिमेनिंग पार्ट वी विल डिस्कस. ओके.